And we got two games, and one of them happened to be a thriller. South Africa versus England, a game that really lived up to its billing. जिसे कह सकते हैं कि मतलब यार खतरनाक. मतलब these are the kind of games that we were actually waiting for, ever since the start of the T20 World Cup. In fact, we were waiting for these kind of games right from the start of the IPL as well. But IPL somehow produced quite a lot of one-sided games. But this T20 World Cup, because of the pitches, because of the conditions, because of the teams, oh my God, this is turning out to be a great World Cup. And definitely, as it's progressing towards the business end of the tournament, man, what a game that we had. And of course, we had the second game as well, which was between West Indies and USA. We'll discuss about those two games, and of course, the big one that's going to happen tonight. But before that big game, before we discuss that big game, Dhanil, first thoughts on England versus South Africa. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में 6 बार मिल चुका है। साउथ अफ्रीका 4 बार जीत चुकी है, इंग्लैंड 2 बार जीत चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड 7 बार मिल चुकी है, साउथ अफ्रीका 5 बार जीत चुकी है और इंग्लैंड 2 बार जीत चुकी है। इट वाज the odds are always in favor of England, but the stats are more in favor of South Africa. Brilliant batting, very bad death bowling, but apart from that, I think they tick the right boxes, and excellent captaincy from Markram. It looks like a side that is getting there. Markram bhi yahi bol raha hai ki we are still 70-60% completing the circle. We will still complete the circle of being a complete team. So yeah, a complete performance. Poor from England, I think, in terms of their power play bowling, in terms of their opening batting, power play batting also, and yeah, I think their ace bowler Jofra Archer went for plenty, which really hurt them. So did Mark Wood. Mark Wood also went for a good amount of runs. तो वहां पे वो थोड़ा सा उनसे हो गया, but they're confident कि हम अभी भी पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में। देखो उनका नेक्स्ट गेम यूएसए के से है, so hopefully they'll be able to do what West Indies did today, with their net run rate. But I think it's going to be a very very tough ask, of course, for West Indies. अभी बहुत ज्यादा important है कि वो गेम जीतें अगला वाला, और इनके लिए भी बहुत ज्यादा important है, इंग्लैंड के लिए भी important है. But we'll come to that. But we'll start off with the South African innings and how the game progressed. But this guy who probably just took it away from England right at the start of the game within the power play, Quinton de Kock. Any thoughts? क्विंटन डी कॉक ने ना ये बोला कि मैं यहाँ पे बारबाडोस रॉयल की तरफ से सीपीएल खेल चुका हूँ, और नाइट गेम के कंपैरिजन में डे गेम में पिच ज्यादा स्लो होता है, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा स्लो होता है। इंग्लैंड ने इससे पहले वर्ल्ड कप में से पहले 4 नाइट मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड का लास्ट मैच भी नाइट मैच था। So Butler could not realize that the pitch will get so slow. And Quinton de Kock said that power play is the best time to score runs because the ball is hard and the pitch is fresh. After that, it will start deteriorating a lot. In a day games in CPL, he has scores of 64 of 53 and 44 of 34 already in 2022. ठीक है, दूसरी बात मैं बताता हूं, मैचअप बहुत अच्छा था इंग्लैंड का। क्विंटन डी कॉक वर्सेस रीच टॉपली ने उसे 4 बार आउट किया है 6 इनिंग्स में। क्विंटन डी कॉक वर्सेस मोहम्मद अली, मोइन अली, उसने 6 बार आउट किया है 15 बार में। सो हाफ ऑफ द टाइम दीज टू ओनली हैव गॉट हिम आउट। नाउ मोइन अली कम्स इन, ओके, ही बॉल्स अ फ्लाइटर, स्टेप्स डाउन, 4 रन। उसके बाद बटलर लॉन्ग ऑन रखता है, ठीक है, मोइन अली फ्लाइट करता है। क्विंटन डी कॉक हैज द इंटेंट टू हिट इट ओवर लॉन्ग ऑन, सो ही इज नॉट जस्ट चैलेंजिंग द मैचअप, ही इज आल्सो चैलेंजिंग बटलर। सिंह तूने उसने फील्डर रखा है ना, मैं वहीं तेरे को मारता, ठीक है। Another important part of his was Moin Ali came back, I think, after Adil Rashid in the middle overs he came back. Moin Ali bowls it outside the off stump. He runs down the wicket, pushes it over covers for a boundary. ठीक है, next ball, after that ball, Reza Hendricks को same ball डालता है मोइन अली, लेकिन उसमें उतना स्किल नहीं था कि कवर के ऊपर मार सके। He flights it up and straight to long on, same ball, but played it so differently. ठीक है, and that is what I'm talking about. Quinton de Kock has the intent. Also, the way he flicked Jofra Archer was vintage Quinton de Kock, just over fine leg, and then he smashed it over mid on. उसके बाद सैम करन एक स्लोअर वन डालता है, वो पिकअप कर लेता है, व्हाट 6. So these are what makes Quinton de Kock so special. बांग्लादेश के सामने जब वो आउट हुआ था ना, तो बॉल में उतना बाउंस नहीं आया, इसलिए वो बोल्ड हो गया। उसके पहले वाले मैच में जब वो खेल रहा था तो बॉल स्टॉप करके आ रहा था, टुक हिम बाय सरप्राइज और सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। उसने ये सब पिच कंडीशंस को इसमें स्टडी किया,
Quinton de Kock initially was a one-day player who took his time to get in. Slowly over the years, he started adapting to conditions. And then using that experience, having that intent, and blasting them in the power play, taking them beyond 60, it took the match away. Butler also said this. I couldn't match up, we couldn't match up to his ability of hitting the ball. And I did not expect the pitch to get so slow. So Quinton de Kock finished the match there in 6 overs. बट एक और बंदा है यार जिसने काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, वो है डेविड मिलर, एंड आई थिंक दैट गाय हैज रियली really helped South Africa, go get over the line. A lot of people will be definitely talking about Quinton de Kock, like how you said. But the kind of innings that David Miller played, he scored some 43 off of some 20 odd balls, 28 balls. मेरे को लगता है कहीं ना डेविड मिलर इज द पिलर, वो बैकबोन है. लोग क्लासन बोलते हैं, लोग मार्करम बोलते हैं, हिज कैप्टेंसी एंड ऑफ कोर्स क्विंटन डी कॉक राइट एट द स्टार्ट, बट डेविड मिलर हैज बीन अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर. मेरे को एक और चीज अच्छी लगी, तूने मैचअप्स की बात करी ना मोइन अली के बारे में. सो जॉस बटलर is a huge believer in matchups, but it's not every time that it's going to work, right? Because if the other guy plans to take you on, and ऐसे वाले पिचेस में ना एक बहुत अच्छा एनालिसिस आया है कि ऐसे वाले पिचेस में योर फिंगर स्पिनर्स रियली वर्क वेल, क्योंकि उनका ना बॉल थोड़ा सा रुक के आता है, धीमे आता है. बिकॉज रिस्ट स्पिनर्स का क्या है ना, मतलब एक फ्रिक्शन मिलता है एयर में, पर वो धीरे धीरे, मतलब ये जो फिंगर स्पिनर है उनका बॉल रुक के आता है, स्टॉप होता है. तो वो मैच वो खेलने की कोशिश किया, बट आई थिंक क्विंटन डी कॉक was really was brilliant because he just took it on and he knew कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है, और उसने वो मैचअप को पूरा खत्म किया. बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ आई थिंक द फर्स्ट सॉरी एट द स्टार्ट ऑफ आई थिंक द सेकंड ओवर देयर वाज सम 3 or 4 for no loss. फिर उसके बाद दोस 2 hits that he made from मोइन अली, राइट, that just elevated the game. एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जॉस बटलर को ना ये चीज पता था, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम हिज कीपिंग, मतलब वो जो क्लासन का डायरेक्ट हिट था एंड ऑफ कोर्स द कैच दैट ही टुक, वो सारे लोग बोलते हैं. बट one more thing that I really liked about England's bowling, because there were some 80 odd in 80 sorry some 8 overs or something, मतलब वो literally लेके जा रहा था. And after that I think it was very poor batting. A lot of people say that it was poor batting, but it was very good bowling also from England, क्योंकि उन्होंने ना काम किया उसके ऊपर. क्या काम किया? They started bowling a little wide, ठीक है, और या तो वो बहुत ज्यादा अंदर डाल रहे थे, या तो वो बिल्कुल बॉडी के अंदर डाल रहे थे. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स, तूने जोफ्रा आर्चर की बात करी, जोफ्रा आर्चर ऑफ कोर्स गिव अप, उसने एक ओवर में, ठीक है, 21 रन खाए, बट इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, ठीक है, बाकी 3 में सिर्फ 20 ही रहा है. सो हिज गो टू डिलीवरी हैज एक्चुअली बीन द स्लोअर बॉल, ठीक है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को वी एसोसिएट हिम विथ पेस, ठीक है. और मैं कल देख रहा था, सो जोफ्रा आर्चर का ना हमेशा से एक बैक ऑफ द हैंड, ये ऐसे बैक ऑफ द हैंड एक खतरनाक स्लोअर डिलीवरी है उसका, ठीक है, विच रियली डिसीव्स द बैट्समैन, ठीक है, इन द एयर. और वो जब नीचे ऐसे मतलब ड्रिप होती है वो बॉल, और वो चीज बताया बहुत फैसिनेटिंग होती है देखने के लिए, क्योंकि वो बंदा ना सीकेआर, एंड इवन सैम करन फॉर दैट मैटर, सैम करन बोल्स ब्यूटीफुल स्लोअर वंस. सो मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने मतलब क्या कहते हैं उसके बाकी 12 ओवर्स में सिर्फ 80 रन दिए ना, सो दैट जस्ट गोज टू शो कि मतलब एवरीवन इज लर्निंग. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग एफर्ट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम पुअर बैटिंग. बट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद कगिसो रबाडा एज वेल. कगिसो रबाडा के बारे में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कि वो ना जब प्रैक्टिस पे जाता है ना, तो वो 2 तरीके की बॉल्स लेके जाता है. एक न्यू बॉल होती है और एक ओल्ड बॉल होती है, ठीक है. वो पहले न्यू बॉल से प्रैक्टिस करता है, डालता है अपनी स्विंग, आउट स्विंग, ये वो. उसकी ना फिर कुछ खतरनाक ये है स्लोअर वंस है जो कि वो यूज करता है. एंड यूजुअली उसके 80% ऑफ स्लोअर बॉल्स ना पता चला है कि अभी लेग कटर हुआ है, एक एनालिसिस है. सो लेग कटर बेसिकली इज व्हेन you release this hand, right, मतलब this finger right from here. Otherwise there are a lot of slower balls available कि मतलब आप जो है अंदर पकड़ के इसको डाल रहे हो, और उसके बाद मतलब with the palm if you're bowling, ये बेसबॉल टेक्निक है, ठीक है. Of the biggest techniques that have also come in this year's World Cup is because वो बेसबॉल टेक्निक वो यूज करते हैं पाम से बॉल करने की, क्योंकि आपका फिंगर ना जिस तरीके से ऐसे स्लाइड होता हुआ आता है, सो इट काइंड ऑफ टेक्स दैट पेस अवे, ठीक है. और आपका 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ऑलरेडी इसमें क्या कहते हैं घिस के आ जाता है. और फिर उसके बाद आपका ऑफ कटर होता है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू रोल द रिस ओवर द जसप्रीत बुमराह वाला, ठीक है, स्लोअर वंस. एंड आई थिंक दैट वाज वेरी
ग्रेट एंड इनफैक्ट ये पूरे वेस्ट इंडीज इसमें ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इनफैक्ट ये मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सबने स्लोअर वन अपनी आर्मरी में डेवलप किया, बिकॉज नॉट जस्ट अबाउट पेस, इट्स अबाउट डिसीविंग द बैट्समैन इन द एयर। और रबाडा का और जोफ्रा आर्चर दोनों एट वर्क, गिवन दिस, मेरे को बहुत अच्छा लगा कल देखने में। एंड if I talk about Adil Rashid, bro, Adil Rashid has literally been contributing again and again to English cricket. वो एक इकलौता तना तनाए लड़ता रहता है। आदिल रशीद के पापा ना टैक्सी ड्राइवर थे, ठीक है, ब्रैम्पटन में। एंड आदिल रशीद और उसके दोनों भाई, बड़ा और छोटा, देयर इंस्पिरेशंस फॉर साउथ एशियन किड्स इन बैक इन इंग्लैंड। आदिल रशीद ने अपने घर से थोड़ा दूर एक एकेडमी खोली है, जहाँ पे वो बच्चों को बुलाता है और बोलता है जो मुझे नहीं मिला वहां पे आप ट्रेन करो। तो सीनियर, जूनियर, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन सब आदिल रशीद क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। I think sitting out for a good 4.5 5 years before becoming a permanent member in the world. This thing, Adil Rashid struggled a lot. It is in 2015 के बाद Ian Morgan came in, Josh Butler came in. That is when they realized that we don't have a very good wrist spinner. और आदिल रशीद से पहले कौन था? एश, मेरे को तो याद भी नहीं कोई रिस्ट स्पिनर इंग्लैंड के पास था भी कभी जो बहुत इफेक्टिव रहा हो। ठीक है, एशले जाइल्स के बाद आई थिंक आदिल रशीद इज एंड मोइन Ashley अली Giles was more of ग्रेम a स्वॉन। finger spinner होगा। ग्रैम स्वॉन, हाँ, सब फिंगर स्पिनर है, James स्पिनर Wan की बात है। finger spinner ही ग्रैम है। स्वॉन, अब आदिल रशीद आया है। एंड हम्म, स्लोली, एंड इनका ना एक वो नाम है, मो एंड रैश। ये उनका एक वो है, वसीम वकार जैसे है ना, वैसे मो एंड रैश। तो हम्म, आपस में बहुत सारी विकेट्स ली उन्होंने। एंड आदिल रशीद इज नोन फॉर हिज वेरिएशंस। हम्म, सब लोग आप राशिद खान की बात करते हो कि हाँ उसका वेरिएशन, कुलदीप यादव का वेरिएशन, बट आदिल राशिद का वेरिएशन जो भी है ना, वो भी आप रिस्ट से इतना जल्दी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो ग्रिप गुगली वाली देता है लेकिन बॉल इधर चली जाती है। एंड फॉर सम रीजन आदिल रशीद प्लेज बेटर और स्पिन्स बेटर विद अ वाइट बॉल एज कंपेयर टू द रेड बॉल। So Josh Butler is all praises for Adil Rashid. Yeah, he says that he's one of the most important members in our side, and it clearly shows. It clearly shows. हम्म। But one more spinner in the second innings who came really good and started picking up wickets at very very crucial intervals। ठीक है, और उसका वो जब भी आता है तो क्या कहते हैं, एक ही गाना बजता है, राम सिया। केएल राहुल बोलता है एवरी टाइम यू कम इन केशव भाई दे प्ले दिस म्यूजिक ओनली। बट केशव महाराज, मैन, आई मीन यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू दैट गाय, ही इज बीन अ साइलेंट परफॉर्मर। ठीक है, अगेन इन इंडियन ओरिजिन, we lost him to South Africa, but 2 wickets. Any words on Keshav Maharaj? We didn't lose him to South Africa. He यहाँ किसको जडेजा की जगह खेलता नहीं है। मेरे को बस दो सवाल है, अगर केशव महाराज का ये पॉडकास्ट सुने तो, ये हाथ में इतना क्या पहन देखा है? ऐसा 1 2 3 कितना कुछ, पूरा हाथ लोडेड है उसका। बट ऑन अ सीरियस नोट, केशव महाराज, उसकी लाइंस देखी तूने? Hmm. आउटसाइड ऑफ स्टंप, फ्लाइट, ही वाज नॉट डार्टिंग That's द how he बॉल picked up लाइक। that wicket also, और वो खतरनाक नोरकिया वाला कैच भी हुआ था। आप अक्षर पटेल या जडेजा को देखो तो वो बॉल को डार्ट करते हैं स्टंप में, फ्लाइट नहीं देता उतनी। केशव महाराज फ्लाइट देता है, और वो ऐसा फ्लाइट देता है Hmm. लाइक द बॉल लूप्स इन। एंड ही इज अ वेरी गट्सी बॉलर, पता है। मैंने उसको कभी, उस दिन द लास्ट ओवर डाली थी तभी वो बौखलाया हुआ नहीं था, फुल टॉस गए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वो बौखला नहीं जाता है स्पिनर। Hmm. ही कीप्स इट वेरी वेरी टाइट, सो it's a good thing. But there another spinner of South Africa is really impressive, Adrian Markram. मैंने Hmm. बोला था ना, जब भी वो कैप्टन बनता है उसको बॉलिंग करने का मन करता है। केशव महाराज के ऊपर ना एक और चीज है कि मतलब उसको ना एग्जैक्टली जैसे अभी तूने मार्करम को बोला, मार्करम यूज केशव महाराज रियली वेल, क्योंकि उसने ना उसको बिल्कुल अगेंस्ट द स्पिन खिलाया टू द राइट हैंडर्स। ठीक है, उसने बोला कि अब तू फ्लाइट कर और आउटसाइड ऑफ साइड फ्लाइट कर और मार, ही गोज फॉर इट, और वो नॉर्किया कैच हो जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ ही गॉट जॉस बटलर आल्सो। हाँ, मजा आ और गया, ये भी मजा तो आ ऐसे आउट हुआ है, मोइन अली भी ऐसे आउट हुआ है, वो फास्ट बॉलर का गया। आउट हुआ है मोइन अली, बट हाँ। महाराज ने कैच पकड़ा था। यही है, तुम अगेंस्ट ये सब कौन, अगर जितने भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ना विंड इंपॉर्टेंट नहीं, आज के मैच में देख लो, विंड हैज प्लेड सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इट चेंज्ड एंड्स फॉर फास्ट बॉलर्स। हम्म। विंड इंपॉर्टेंट नहीं है। विंड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका जो बॉल है ना भाई, ये इतना हैवी भी नहीं है कि मतलब जब कि वो हवा उसको ले नहीं जा सकती। 153 से 163, 153 से 163 ग्राम्स का 155.9 रहेगा से बस। लेकर हाँ, 155.9 से लेकर 163 ग्राम्स तक ये बॉल बॉल रहती रहेगा।
ये लॉ है भाई एमसीसी का, सिंपल सी बात। हम नहीं बोल रहे हैं अपने मन से भाई, बॉल हाँ जो मेकर बनाता है उसको बोला जाता है, वहां हाँ। वेट होता है आउंस के हिसाब से, फिर उसके बाद उसको हैवी किया जाता है ताकि रिवर्सिंग हो, वो किसी और दिन कवर करेंगे हम। बट ओटनील बार्टमैन, ओ माय गॉड, आफ्टर ऑल दैट हाइप, समझ नहीं आया कि मतलब यार वो बिल्कुल ही एग्जीक्यूशन रॉन्ग हो गया। यार हर बॉल यार, मेरे को पता है अब, अगर बैटमैन बैटमैन ना ऐसे T20 खेल चुका है, तो मुझे क्या लगा कि यार अगर उसे पता है कि उसका यॉर्कर नहीं जा रहा है ना, तो वो जो स्टॉक बॉल है ना यार, की स्लोअर वन, अबे उसके बाद रबाड़ा और जैनसन ने क्या किया है, स्लोअर वन ही डाला है, फास्ट स्पिन बॉलिंग नहीं कर रहे थे वो लोग, इनटू हम्म द विकेट, इनटू द विकेट, इनटू द विकेट, नहीं मार पा रहे थे आप, unless until you bowl really short and you give the batsman time to see it's a slower one, you हम्म। just couldn't hit it. So Batman could have gone that way, but यार एक दो तीन चार ही it was, I was scared यार, I said match over, but ठीक है, it's all a question of execution and but यार मेरे को समझ में नहीं आया, ड्यू भी नहीं था, फुल टॉस कैसे चला गया, मतलब either you're too scared कि यॉर्कर He एग्जीक्यूट was, it नहीं was हुआ a तो हाफ nervy बॉल ही over. जाएगा, It was a nervy over ऐसा करके बोला है कमेंट्री में। और he was trying to go for low full tosses. He was not trying to go for low full toss. He was trying to go for the wide Yorker. पर वो तो बार बहुत बार खराब है, एग्जीक्यूशन उसका वो गलत तो गया, तो बहुत मार्करम में खराब आया, मार्करम ने क्या बोला, मार्करम ने फिर उसके बाद फील्डर भी तो मतलब क्या कहते हैं मिड विकेट पे लिया। है। हाँ वो इसलिए लिया क्योंकि उसको मालूम था कि भाई इससे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, एंड दैट ओवर इंग्लैंड वर प्रीटी मच इन द गेम। ही हाँ, खत्म था वो, वेंट अहेड और विन 71%, वो आ रहा था कुछ 71-73%, मतलब अब इंग्लैंड 71% था देगा इंग्लैंड। इसमें। बट देन सम हाउ, एंड दैट्स व्हाई ऐसे मतलब रबाडा ने जो ओवर डाला ना, दैट रियली गॉट साउथ अफ्रीका बैक इन द गेम। हाँ ऑफ कोर्स रबाडा उसमें ने भी एक फुल फुल टॉस टॉस ही था, डाला था उसने। इसने भी फुल टॉस था। बट यू लुक एट द लास्ट टू बॉल्स, जब लास्ट टू बॉल्स उसको मालूम था कि मतलब वो क्लिनिकल, मतलब वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉल्स होने वाले हैं, ठीक है, व्हाट डिड ही गो टू द स्लोअर वंस। The भाई last two फास्ट balls स्पिनर, that he bowled in that spell were slower ones. And that's why ऐसे कि मतलब वो इतना ज्यादा उस चीज को प्रैक्टिस करता है ना अपनी आर्मरी में। you know who am I missing a lot here in this World Cup? I think we should have taken him with the kind of bowling that I've seen. Harshal Patel. हाँ He has 42 ways of bowling a slower one. हाँ। 42 ways, वो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा करता है। हर्षल पटेल का पता है क्या कहता है? हर्षल पटेल ये कहता है कि भाई मेरे जो स्लोअर वंस है ना, वो मेरे फास्ट वन से मतलब मेरे को ज्यादा एफर्ट लगता है उस चीज में। तो हाँ बहुत ना प्रैक्टिस उससे करनी पूछा पड़ती गया कि मतलब यार बहुत सारे लोग ना ग्रंट करते हैं, ऐसा करके डालते हैं मतलब जब बॉल डिलीवर करते हैं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि भाई कुछ लोगों के ना डिसेप्शन होती है कि ऐसे करके डालेंगे तो बैट्समैन को लगेगा कि हाँ तेज आने वाली है बॉल, पर होता नहीं ऐसा, वो धीमे आती है, ठीक है। पर मेरे लिए मेरा एफर्ट बॉल ही वही है, क्योंकि अगर मैं कभी कभी मारने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं स्लोअर वन क्या कहते हैं डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड इन माई माइंड कि हाँ वो लो फुल टॉस भी जा सकती है, हम्म ठीक है, क्योंकि वो डिप होगी। उसने हम्म। धोनी को कैसे आउट किया था याद है तेरे को? हाँ फर्स्ट बॉल, वो क्या फर्स्ट बॉल, विकेट गया था so वो, that could have been a low full toss also. ऑल्सो। Okay, so you have to be prepared in your mind that it can be a low full toss, but for me, usually my slower ones, it takes a lot of effort for me because I use my wrist, I use my fingers. ठीक है, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और वो जब डिप करती है, एंड ऑफ कोर्स he's got a variety of slower balls, वो ऐसे करता है फिंगर्स को, ये करता है, एंड ही practices in day in day out. सो आई मीन हर्षल पटेल डेफिनेटली, बट यार ठीक है, अपना अपना टीम अभी अच्छा है यार, तो अभी अपना टीम के बारे में बात कर, फिर से विवाद हो जाएगा, लोग कहेंगे कि उसको लेके आओ, अभी उसको निकाल के, इसको निकाल के, तुम लोग क्या बात तो करते हो? आधी फ्लाइट से बुला के लाओ सर, वो वेकेशन पे गया फैमिली के साथ, नहीं फैमिली को भी लेके आओ, सबको निकाल दो टीम से, पूरा नया वो टीम। काम किया हुआ है पता है यूएसए में, वो यूएसए क्या? में काम किया हुआ है आई थिंक, सम इन सम कंपनी, हर्षल हर्षल पटेल। पटेल लंदन में काम किया है उसने। लंदन में ही काम इज अ वेरी एविड शेक्सपियर रीडर, मतलब वो बहुत ज्यादा इंग्लिश लिटरेचर में, किया, बहुत ज्यादा। बट अभी नक्कल बॉल कोई नहीं डाल रहा है, पता है बेसबॉल में, एक वो पता है ऐसा नक्कल बॉल डालेगा ना तो तेरे को लगेगा बॉल जैसा नीचे जाता है कल बॉल पूरा, डालता था एकदम डेल से, स्टीन, डेल स्टीन डालता था ऐसा। एकदम से नीचे चला जाता है, ऐसा ऐसा छोड़ना पड़ता है इससे नक्कल्स को ऐसे आगे करके। मैं बोला ये सब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, पता नहीं लोग क्यों इतना ट्राई करते रहते, नहीं कसम से नहीं है यार, सोच के ही डर लगता है यार मेरे को तो कि ऐसे इतना एफर्ट नहीं। बट हैरी इंग्लैंड ब्रूक के बारे में बोल दे भाई कुछ, गॉट हैरी ब्रूक भी अच्छा खेला है, उसके बारे में कुछ अच्छा लगा मुझे हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक, यार हैरी ब्रूक और लिविंगस्टन दोनों, मतलब वो जो पार्टनरशिप थी, ठीक है,
वो डीप ले गए वो गेम को। वो काफी डीप ले गए थे और मुझे लग रहा था कि अभी हो जाएगा, ठीक है, अभी ये होना चाहिए, बट ठीक है मेरे को समटाइम्स तो गुस्सा ही आ जाता अगर हो जाता तो, both पता है। teams were just both teams gave it away at one point in time to the other team, but I think England were pretty much क्या कहते हैं better in actually giving it away to the other team rather than क्या कहते हैं, because this was at one point in time England's game, मतलब ये इंग्लैंड का ही गेम था और साउथ अफ्रीका कहाँ से जीत गई उनको खुद नहीं ये पता। साउथ अफ्रीका का गेम था भाई, कैसे इंग्लैंड का गेम था। यार आफ्टर दैट ओवर, आफ्टर द ओटनील वार्नर, इट वाज मैं ऑल मिडिल ओवर्स इंग्लैंड। की पहले बात कर रहा हूँ, जब 80 पे 4 थी उस टाइम पे। नहीं ऑफ अब तो कोर्स, खत्म ही था फिर ना, उसके बाद दैट इज टीवी दैट इज चलना था हाउ मैच। दैट इज हाउ टी20 इज, राइट, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, स्टॉक्स की तरह है भाई। इसलिए तो मतलब इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। पर मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, ये मैच जब वो 3 ओवर बचे थे तब इंग्लैंड को आसानी से जीत जाना चाहिए था, हाँ विद तब सैम तो करन यार। ऑल्सो टू कम इन। ठीक है, विद सैम करन ऑल्सो टू कम इन। भाई उनका कभी कभी जोफ्रा आर्चर भी सिक्स मारता है, जोफ्रा हाँ हाँ आर्चर ऑल्सो बैट, हाँ हाँ, अरे लंबे सिक्स मारता है वो। मार्कवुड कैन ऑल्सो मार्कवुड बैट, भी मारता है भाई, मार्कवुड भी मार्कवुड कैन मारता है, ऑल्सो हाँ। बैट। मार्कवुड भी मारता है। बट नोकिया भाई, नोकिया, नोकिया है। नोकिया के सारे ओवर बिगाड़ दे, सिर्फ एक ही वो अच्छा ओवर था, एंड दैट कैच, इट हाँ वाज दैट कैच बाय मार्करम विच जस्ट कंप्लीटली यू नो टर्न द टेबल्स अगेंस्ट ये अपना इंग्लैंड, वो जो क्विंटन catch था डिकॉक ने भाई। देखा क्या बोला, क्विंटन हाँ, डिकॉक ने देखा क्या बोला। क्या बोला? क्विंटन डिकॉक ने बोला कि आप टीवी में वो कैच देखते हो तो आपको लगता है हाँ ठीक है उसमें क्या है, लेकिन जहां से मैं खड़ा हूँ मेरे लेफ्ट टू राइट ब्रीज जा रही है। So it is taking the not just taking the ball away from Markram, but it also swinging it in the air and हम्म, to run behind and take that catch. Okay, and he is Markram. He's the only captain that Quinton de Kock has seen कि भाई ये हाई कैच प्रैक्टिस करता है। बाकी मैं इतने फ्रेंचाइज के लिए खेला हूँ, मैंने कभी किसी कैप्टन को हाई कैच करते हुए नहीं देखा। बट मार्करम स्पेसिफिकली पूरी टीम में सबसे ज्यादा हाई कैचेस लेता है। और मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैंने इसलिए मार्करम का बात किया था, वो बंदा मस्त है। सेमीफाइनल में शायद हार जाएंगे वो, बट बाकी मस्त बनता है वो। अगर इंडिया के साथ खेल रहे हैं तो आ जाएगी। हाँ तो वही बोलना पड़ेगा ना यार। माफरूम। चलो, but England, I think, will be really gutted, with this performance. They could have probably had 2 points in their kitty, but unfortunately, it wasn't to be. Now they have their और एक next बात, game सॉरी against USA सॉरी at और एक बात, Barbados. हाँ, सॉरी और एक बात, तूने पता ये बोला कि बटलर बिलीव्स अ लॉट इन डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक समथिंग हैज चेंज्ड बिकॉज देयर कोच सेड दैट यस, जॉस बटलर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस बट नाउ, I said he believes in a lot of matchups. हाँ सो नाउ ही स्टार्टेड गोइंग विद हिज गट। तो डेटा में मैचअप जो भी दिखा रहा है वो नहीं करता, जो उसका गट बोलता है वो करता है। तो वापस मैचअप पे चले यार जाओ। नहीं, वो सी, when it comes to captaincy ना, it is at times very important कि आप गट पे भी जाओ at times, हाँ so ठीक it है। is very important कि मतलब आपके पास वो बैलेंस हो, ठीक है। शेन वॉर्न ने पता है क्या बोला है? शेन वॉर्न, ही इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन, मतलब ऑस्ट्रेलिया नेवर हैड, ठीक है, बट शेन वॉर्न ने एक चीज बोली थी जो कि कैप्टनसी का एक बहुत अच्छा रूल है, ठीक है, दैट यू नीड टू हैव वेरी गुड इमेजिनेशन कि अभी क्या होने वाला है, यू नीड टू बी, दैट्स हाउ नीड टू बी 2 steps ahead of the game, and data can never take you there. It is हम्म always your gut, it is always your instinct, and always your experience of having played cricket for so many years, कि हम्म आपको मालूम है कि अभी क्या होने वाला है, ठीक है। हम्म इफ समवन लाइक, ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स टू जस्ट गेज कि अभी क्या करने वाला है बैट्समैन, किस माइंडसेट में है। इफ समवन लाइक इवन सरफराज खान फॉर दैट मैटर कैन कमेंट कि भाई अभी ऑलिव आगे बढ़ने वाला है, ठीक है, सो दैट जस्ट हम्म। टू शो कि मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, आपकी गट फील क्या कर सकती है। सो एट टाइम्स योर गट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, कि मतलब आपका किस तरीके से आप इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज क्या कर रहे हो कि हाँ, एंड दैट इज हाउ, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड लीडर्स एंड ग्रेट लीडर्स। हाँ बट अभी, अभी जैसे यार, अब जैसे क्विंटन डिकॉक ने बोला, टॉस कौन जीता, इंग्लैंड जीता ना इंग्लैंड शायद। जीत, इंग्लैंड 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 जीता, ठीक है। इंग्लैंड का इंग्लैंड। इससे पहले मैच में ये था कि हम चेस करेंगे, हमने कर रखा है। हम्म, हावेवर वो पिच इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी वहां पे, वहां पे जॉस बटलर को किसी ने बताना चाहिए था कि बॉस ये होता है डे गेम्स में यहाँ पे। हम्म, समझ रहे हो, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका हैड टू चेस विद द काइंड ऑफ स्पिनर्स इंग्लैंड हैड, दे वुडंट हैव बीन एबल टू चेस। द गट ऑफ गोइंग विद, इससे पहले भी उसने एक डिसीजन लिया था जहां बोला कि आपने ये क्यों किया, द गट ऑफ गोइंग विद नॉट गोइंग विद टॉपली। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा ना वो गट फीलिंग गलत आ रहा है जॉस बटलर का, तो इसलिए मैं बोल रहा था। But team बट selection has definitely been an issue with this setup.
जहाँ पे जॉस बटलर हैज थोड़ा सा, मतलब वो 2023 वर्ल्ड कप में भी उसको थोड़ा सा, मतलब ही वो सीन वांटिंग, मतलब थोड़ा सा उस चीज में। और तेरी लाइट चली गई यार, हाँ, वापस आ रही है। देखते हैं। आ जाइए, आ जाइए। तब तक तू दिख रहा है, लेकिन तू दिख रहा हाँ, ठीक है, है। ठीक है। But yeah, मतलब he was seen wanting for a lot of decisions. In fact, उसका जो सबसे बड़ा डिसीजन था कि लोग कह रहे थे कि यार तुमने वानखेड़े में इतनी गर्मी में मतलब अपनी पूरी टीम को जो है बैटिंग, सॉरी, बॉलिंग करा दी, और फिर उसके बाद तुम बैटिंग कर रहे हो, मतलब तो थके आ रहे तो आ रहे हो तुम, कैसे 300 वगैरह तुम चेस कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So all of that also comes into play, but I think yes, they have their next game with USA at Barbados. So hopefully, they are able to sort of make amends, and make amends to not just the points on the table, but also the net run rate. And West हम्म। Indies will definitely have to come good now against for their game against South Africa. So that is also a game that we can all look forward to, which is going to be a cracker. But yes, moving on to the next game, which was between West Indies and USA. वेस्ट इंडीज भाई हमेशा से, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि मतलब एक्चुअल T20 कौन है, एक्चुअल T20 में। ठीक यार, है, तुम यूएसए हो, तुम कोशिश कर रहे हो, पर है अभी टाइम है मुझे, हमारा। हाँ मतलब, हाँ कि, हाँ यार, अब यार। और स्टुअर्ट लॉ ने ना अभी इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं अभी 2 महीने पहले आया ना, तो मैंने किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं की। मेरे पास बस जस्ट प्लेयर्स आए और उन्होंने बोला कि मेरे को अपना रोल चेंज करना है, या मैं ऐसा बैट्समैन हूँ, मेरे को ऐसे बैटिंग नहीं करना है। तो उसने बोला कि एरन जोस मेरे पास आया, वो तो आई वांट टू बी एन अग्रेसर। स्टुअर्ट लॉ बोला गो बी एन अग्रेसर। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज देयर थिंकिंग और एनीथिंग, और थोड़ा बहुत स्किल में इधर उधर। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, द लास्ट ओवर, द सुपर ओवर अगेंस्ट पाकिस्तान, अली खान वेंट अप एंड सेड आई विल बोल दी ओवर। हम्म, It is Stuart Law who said no wait. So he asked Monak Patel, who do you want to bowl? बोलता है सौरभ नेत्रेवाल। बोलता है गुड चॉइस, बिकॉज सौरभ नेत्रेवालकर को वाइड यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कराई है, स्लोअर रन्स की प्रैक्टिस कराई है, एबिलिटी है, इंटेंट है। तो ना यूएसए ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत करता रहता है। जैसे उसने बोला कोरी एंडरसन के बारे में कि कोरी एंडरसन को अपने टीम में क्यों लिया है, वो तो इतना नीचे आता है, उसको 5-6 पे क्यों नहीं भेजते आप? होता है कोरी एंडरसन का सिर्फ रोल मैच जिताना तो है ही, बट हम्म, एक कामिंग फिगर है वो टीम में, कि भाई कुछ हुआ, एंड में मैच फंस गया, किसी को नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना है, तो वो है उधर, वो बताएगा शांत रखो, ऐसे करो वैसे करो, सीनियर टीम में। हम्म। एंड्रयू गाउस को ओपनिंग करना था, ओपनिंग कराया उससे, वैसा। तो इसलिए ना मेरे को जब जब पता होता है ना आपको कि टीम में क्या एफर्ट चल रहा है पीछे, और जब वो नहीं आता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तब थोड़ा बुरा लगता है। बट उस तरफ वेस्ट इंडीज था, वो भी अपना दिल से अच्छा टीम है लोग। तो घर में मैच है यार, और घर में मैच वर्ल्ड कप हारना पता है ना कैसा होता है। पर एंड्रे रसेल एज अ बॉलर, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू दैट ही गॉट, स्टीवन टेलर को आउट किया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, मतलब सब लोग ऑफ कोर्स एंड्रे रसेल की बात करते हैं एज अ बैट्समैन, बट हम्म। he's really performed well with the ball यार, मतलब वो आई चाहे वो कोई भी T20 लीग देख लो, नाउ इवन फॉर वेस्ट इंडीज फॉर दैट मैटर, दिस गाय विद द बैट एंड बॉल इज जस्ट बॉक्स ऑफिस में. एफर्ट देखना है यार उसने कितना किया है। उसने बोला आई वांट टू बी एज फिट एज अ यूएफसी प्लेयर। वो हम्म, वो बोलते हैं ना कि पहले वो बल्की था, अब वो लीन हो गया है। जब आप लीन हो जाते हो तो आपकी बॉलिंग भी अफेक्ट नहीं होती। पोलार्ड बिकेम लिटिल बल्कियर, हेंस ही कुड नॉट bowl so much. And एंड्रे रसल अभी इंजरी से बाहर आए, केकेआर ओनली हेल्प हिम टू कम आउट, एंड इट शोज यार। एंड यार आज उसने जब, आई मीन ग्रेट, आई डोंट नो व्हाई दे वांट एंड्रे रसल टू bowl इन द फर्स्ट ओवर। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लान और समथिंग। यस फॉर श्योर. इफ इट इज देन वी डिड नॉट नो अबाउट दिस। एंड भाई इन लोग का प्लान समझ में नहीं आ रहा है, चेंज होता रहता है यार। बट पता है यूएसए एक्चुअली अच्छा बैटिंग कर रहा था आफ्टर द लॉस ऑफ दैट फर्स्ट विकेट. ठीक है, हम्म। अगर आप देखो तो उनका हाँ, पार्टनरशिप 50 तक चला. 48 तक चला था उनका। हाँ, फिर उसके बाद मोती आया, योगेश मोती आया, उसने मतलब एक विकेट निकाली, एंड रोस्टन चेज मैन दैट अगेन, मतलब उस बंदे ने मतलब ही अगेन रैन थ्रू द एंटायर यू नो द मिडिल ऑर्डर ऑफ यूएसए. हम्म। वो उसका भी देखने में बहुत मजा आया, फिंगर स्पिनर हु इज रियली कमिंग गुड इन दीज वेस्ट इंडीज स्लो विकेट्स. भाई आपके पास क्या नहीं है? अकेल हुसैन है, हम्म, गुरकेश मोती है, रोस्टन चेसा फिंगर स्पिनर है, कोई स्पिनर नहीं। एंड
these guys have played so much cricket where they are playing, yeah, and uh, uh, for USA to come out and trying to beat an informed West Indies, apart from the last match, of course, when they could not execute their bowling really well, Hmm. it was a one-sided contest, yeah, and I Yeah, mean, धीरे धीरे अब USA 128 was never हाँ going to be enough, right? हाँ हाँ और वो बहुत जल्दी भी चेस कर दिया यार उसके बाद। वो कहते हैं ना कि मतलब नेट रन रेट भैया, नेट रन रेट उनको भी पता है one कि नेट man's रन रेट misery is another man's opportunity, and अपॉर्चुनिटी। then comes in Shea Hope and of course Nicholas Puran. Nicholas Puran, सोच, सेमीफाइनल की जगह के लिए दो टू टाइम वर्ल्ड चैंपियंस एज टू एज खड़ा है। तो भैया ये क्रिकेट का गेम है, इधर पास्ट कुछ लॉरल्स मैटर नहीं करता, और जो है पता वो अभी है। है और पता है इतनी बड़ी इस पे भी कोई बड़ी बात नहीं कि साउथ अफ्रीका इतनी बुरी तरह हार जाए कि वही नॉकआउट हो जाए अभी दो मैच के जीतने के बाद। इनका ग्रुप ऐसा है अब भाई। वेस्ट इंडीज के सामने है ना अब तो एक बस। अभी एक उनका वेस्ट इंडीज के सामने है, ठीक, हाँ पर इंग्लैंड का यूएसए के सामने है। ठीक है, तो इंग्लैंड और यूएसए में सिंपल है, इंग्लैंड कितने बड़े मार्जिन से कितनी जल्दी जीत सकता है, जैसे आज जीत वेस्ट सकते इंडीज। हैं हाँ। ठीक है, पर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में ये सीन है कि मतलब अगर बहुत नेक टू नेक गेम रहा तो हम्म इंग्लैंड विल हैव अ बेटर चांस, साउथ अफ्रीका विल हैव अ बेटर चांस। वेस्ट इंडीज इफ दे विन दे हैव टू आल्सो विन विद अ मार्जिन, हम्म ताकि उनका हम्म नेट रेट भी उससे बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी हम्म। आज उनका नेट रन रेट ऊपर हो गया है, बट इंग्लैंड का दोबारा हाँ से फिर से ऊपर हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर हो जाएगा तो। यूएसए से खेल रहे हैं, तो दे इंग्लैंड विल हमेशा कि नेट रन मतलब रेट में फंस जाता है। ये ग्रुप नेट रन रेट में फंसेगा। इंग्लैंड इस बार लैपटॉप से जीतेगा मैच। But it is a good innings from Shea Hope, scoring 82. But the rise and fall of Shea Hope ना मतलब काफी अनयूजुअल है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ Shea Hope के बारे में। तो 80 और लोग हैं ऐसे जिन्होंने टेस्ट मैच में, एक ही टेस्ट मैच में दो इनिंग्स में 200 मारे हैं, ठीक है। पर उनमें से सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी उसके बाद टेस्ट मैचेस में 100 मारा ही नहीं, ठीक है। और 2017 में एक टेस्ट मैच हुआ था जहां पे शे होप ने ऐसे 200 मारे थे, उसके बाद वो 26 टेस्ट खेल चुका है और आज तक उसने 100 नहीं मारा है। जब उसने शुरू किया था ना अपना करियर 2015 में, तो बहुत सारे लोग बोलते थे वो फ्लैम्बॉयंट है, अग्रेसिव है, अश्योर्ड है, कॉन्फिडेंट है, इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड ओडीआई क्रिकेट में लोग कहते थे कि अमंग्स द T20 हिटर्स, ठीक है, वो एक एंकर का रोल प्ले करता है। उसका एक भाई है काइल होप करके, वो उसने भी वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया है। तो हर्षा भोगले ने बोला है कि वो तो एक ऐसा प्लेयर है जो सोच के आता है कि भाई हर एक गेम सिर्फ 6 बॉल की है, ठीक है। और ऐसे में जो शे होप का जो एंकर करने का तरीका है ना वो बड़ा ही रिफ्रेशिंग है। पर यूजली आप देखो प्लेयर्स जैसे शेहोप जैसे होते हैं जिनके पास कंट्रोल बहुत अच्छा है, वो ओडीआई और टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, और इसीलिए वेस्ट इंडीज में हमेशा से ये बोला गया है यार कि वो बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग है, ठीक है। ऐसे में 2 साल पहले जो फॉर्मर एक वेस्ट इंडीज विकेट कीपर बैट्समैन थे जेफरी दूजॉ, उन्होंने कहा है कि मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि शे होप से बढ़िया बैट्समैन वेस्ट इंडीज में कोई नहीं है। एंड उसका टेक्निक थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है विद सो मेनी कॉम्पिटिशन अराउंड, बट वो ओवरकम कर लेगा उस चीज को क्योंकि उसमें क्वालिटी है, ठीक है। अगर उसका आप ओडीआई रिकॉर्ड देखो ना, ही प्लेड 124 गेम्स और उसका एवरेज 50.26 है, एंड ही स्कोर्ड 1600, ठीक है। एंड उसने डीसी के लिए इस साल अभी डेब्यू किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही प्लेड इन द आईपीएल, एंड इन द 9 मैचेस दैट ही प्लेड ही स्कोर्ड 183 रन्स। उसने ना एक इंटरव्यू में बोला है कि यार ये जितनी भी आउटसाइड आउटसाइड नॉइज होती है ना, जो कहते हैं कि यार मैं बहुत अंडर परफॉर्मिंग हूँ, ये वो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं टीम के रोल में किस तरीके से फिट हो रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी टीम जीतनी चाहिए। और आज भी आप देख लो वेस्ट इंडीज को यही जरूरत थी कि नेट रन रेट उनका ज्यादा हो, और जिस तरीके से वो खेला है जस्ट गोस टू शो दैट ही इज अ टीम मैन। सो शे होप, ठीक है, हैज बीन अ क्यूरियस केस फॉर वेस्ट इंडीज, एंड they just don't know what's happening with him, but I just hope that in the times to come, because he's just 30 years, ठीक है, उसका एज सिर्फ 30 साल का है। So I just hope that in the times to come, he, really gets going for West Indies, because if he does, okay, we can probably have another great, in the cricketing history या Is फिर he game में जिसे कह सकते हैं। is he playing for the first time this World Cup, right? He's playing for the first time, right? He played in पहली the बार होगा? game against Afghanistan. अच्छा he played, okay, He क्योंकि वो played he played one game. He played one game. वेस्ट इंडीज का किंग तो आउट हो गया इंजरी से, तो किंग ब्रैंडन आउट हो गया ना तो होप आ गया, वो किंग आउट हो गया तो होप होप को ले आया। वेस्ट इंडीज के लिए बात करें गाइस, नॉट इंडीज, वेस्ट इंडीज।
वेस्ट इंडीज पहले ही बता रहा हूँ भाई। But to one side at this game, and of course, as we discussed, too many permutations and combinations for, of course, two teams to progress from this group. It can be South Africa, it can be West Indies, it can be England. Who knows? Unless the next leg of games is actually played. We'll come to that. But the big game tonight, and of course, India taking on Bangladesh. Same team. बांग्लादेश के पास जवाब नहीं है दोस्त, हाँ सेम टीम। बांग्लादेश के पास जवाब नहीं है, उनके टॉप बॉर्डर के पास बिल्कुल जवाब नहीं है, और बुमराह एंड को के सामने बैटिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक ही Yeah. प्रॉब्लम है कि ये फॉर्म फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, Yeah. पर इनको हमारे सामने फॉर्म नहीं मिलना चाहिए, because we've seen Mhm. that if two if a partnership is built by two Bangladeshi batsmen, they tend to capitalize on it a lot. Like अगर आपने पावर प्ले में मान लो 30 रन कर लिए जीरो पे, and then you start dominating, they have that ability also, especially with people like Shakib who've played with us before, Shanto who's played with us before. India might want to look at Rishad Hussain and see how to counter it, and I think Dubey should target Rishad Hussain now to shun off all the criticism. Then they have Sakib to handle in the middle overs, and they have these two excellent pace bowlers, Tanzim, and of course there is Mr. Fizur who's leading it. So yeah, it's not going to be easy batting. It's a very good informed bowling team, but their only nightmare is their batting. वो जो 1 2 3 4 नंबर 5 नंबर तक बैटिंग है ना, वो भाई करना पड़ेगा। मसल और नहीं लिटन दास ना मतलब पता वो है इंडिया के सामने हमेशा खेल लेता है। हाँ वो T20 वाला बात नहीं है उनमें, क्योंकि आजकल T20 में ना इम्पैक्टफुल जो इनिंग्स होती है ना वो नहीं है। इसलिए उन लोगों ने पहले भी बोला है कि यार हम वनडे में बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वनडे में आपको टाइम मिल जाता है। टाइम मिलता है You can थोड़ा, press the किधर बॉल ball, जा you रहा है, can क्या play, जा you रहा है। take your time. So that is how one day cricket is played. But they have never been able to sort of get into that T20 mode. And obviously वो इसलिए भी है क्योंकि, और हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ना पैसा बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, पूरा मतलब अच्छे से। पर जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, फॉरेन प्लेयर्स को भेजो। वहां पे फॉरेन प्लेयर्स को मिल जाता है मौका, उनको मिल जाता है मतलब सारा कुछ एक्सपीरियंस, जैसे कहते प्रेशर। हैं वो सारा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मिल जाता है, इन लोगों को नहीं मिलता। और यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम द बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दिस इज अब T20 और फॉरगेट अबाउट T20 मैन, क्रिकेट इज अ बैट्समैन्स गेम। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब यार इट इज बॉलर्स, और सच बात बॉलर्स यही, विन मैचेस बट द गेम बॉलर्स बिलोंग्स टू विनिंग बैट। टूर्नामेंट एक्सेट्रा, बट सच बात यही है कि मतलब क्रिकेट इज अ बैट्समैन गेम एंड you've got अब to कोई come up with batting talent and of course to counter टीम्स लाइक इंडिया, टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास मतलब वो खतरनाक एक बॉलिंग लाइनअप है जो आपको कभी भी परेशान कर सकती है। सो यार वो मैच व्हाट देख आर ले द आंसर्स दैट लास्ट यू वाला। हैव फॉर a Bumrah bowling or let's say even Arshdeep for that matter, or Kuldeep comes in, ठीक है, वो आंसर्स होने बहुत जरूरी हैं आपके पास एज अ बैटर। स्लोअर होने का कितना इम्पैक्ट है कि तूने कैसे बोला बुमराह कमिंग, अर्शदीप कमिंग सब ऐसा। अरे जैसे मिचेल स्टार्क का वो विकेट लास्ट मैच में, भाई का विकेट लिया ओपनर का, उनका लेफ्ट हैंडेड ओपनर है वो, यार इट वाज अनप्लेएबल यार, जस्ट वुप करके अंदर आया यार मिसाइल की तरह। एनीवेज मिचेल स्टार्क ने बोला है मेरे को वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलने का है, और अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ बोल दिया उसने वो नहीं ये खेलेंगे। बोल तो दिया है ऑफ कोर्स, और हो सकता है कि मतलब अब सिर्फ अ, आगे टेस्ट चल क्रिकेट खेलना है सिर्फ उसको, टेस्ट 100 क्रिकेट और टेस्ट खेलना है T20 लीग्स खेलेगा बस। उसको, T20 100 टेस्ट खेलना है बस। अच्छा है भाई, थैंक यू। भाई, जिमी लेकिन ऐसे एंडरसन, पेसर का थैंक यू। 100 टेस्ट खेलना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। यार ऑफ कोर्स यार, ईशांत शर्मा ने भी 100 टेस्ट तेज खेले हुए डालता है भाई, वो बहुत तेज डालता है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका बॉल नटराजन बोलता है दिखा ही नहीं भाई मेरे को। हैं। अरे वो भाई, तू उस पे देख ले, टीवी पे जब वो बॉलिंग करता है ना, वो डर लगता है। लैटरल मूवमेंट देख रहा है, बॉल ऐसे, हम्म। पता नहीं यार, बॉल ऐसे जाके फिर ऐसे पता नहीं सांप की तरह अंदर आता है, जुक करके अंदर, सिर्फ बेल उड़ने का आवाज आता है और लाइट आता है, टुक, खत्म, थैंक यू। टू गुड यार। बट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया टू स्ट्रांग, मतलब नहीं हो पाएगा। यार देख 90% तो जीत जाएंगे, बट 2007 में हमने यही टीम के सामने हम हारे थे, मतलब बांग्लादेश के सामने हारे थे, यही टीम नहीं, तो थोड़ा सा अभी अब वो ट्रॉमा रहता है ना, 2007 वाला, जैसे नहीं साउथ नहीं अफ्रीका के लिए 99 ट्रॉमा है, हम लोग के लिए, तो थोड़ा डर लगता है, बट मोस्टली यार हो जाना चाहिए। आई होप मोस्टली नो वन हो क्लिक्स जाएगा। फॉर बांग्लादेश। एंड द नेक्स्ट गेम इन द मॉर्निंग इज ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया इज एट इट्स पीक। वही उनका भी अफगानिस्तान का भी सेम प्रॉब्लम है बैटिंग। हाँ वही, अब मिचेल स्टार्क को वो रेमनुल्लाह गुरबाज अगर आगे आगे मारने की कोशिश करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको, वो छोड़ेगा नहीं स्टार्क उसको ऐसे। क्या ऑस्ट्रेलिया में ना पता है क्या, क्योंकि कभी भी उनके बॉलर्स को ना चौका या छक्का लग जाए ना, उनके ना जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो देखना कभी फील्डर्स में, कभी ट्रेविस हेड को दिखाया है या फिर ये दिखाया है, हाँ ठीक है कर ले, हाँ तू कर ले, मारा ना, ठीक है हाँ हो चौका, जाए, ठीक है देख, अभी तो देख, अभी तो देख अब इतनी जोर से डालूंगा उल्टा ना, अगले इतनी इनिंग्स जोर से डालूंगा। में। उनका भाई अलग ही माइंडसेट है भाई, उनका मतलब रॉक सॉलिड माइंडसेट है वो, बढ़िया आई मीन। स्किल्स और एबिलिटी में भरोसा है भाई, दिमाग लगा के खेलते हैं वो लोग, वो हम्म, चीजों को समझते हैं, वो हर मैच से पहले अच्छा ये करना है। एंड्रू मैकडोनल्ड इज अ कोच दैट हैज नॉट गॉटन अ लॉट ऑफ क्रेडिट, या and that is because he says that, my job is not to go in the field and play, it's their job, it's their decision. My job is to say, okay, I have a problem here, can you do it? Yeah, I can do it. एंड्रू मैकडोनल्ड इज अ वेरी वेरी गुड कोच, पता है, और इसलिए इसको वो डैनियल विटोरी, ये दोनों जोड़ी है, वो बोला इसको लेके आओ, ये इसके साथ करेगा मैं। हाँ, पता है लेकिन बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि अ वेरी गुड प्लेयर ऑफन मेक्स अ बैड कोच, हेड कोच। इट इज ऑलवेज एन एवरेज प्लेयर हु मेक्स अ वेरी वेरी गुड कोच, क्योंकि Are you calling someone a bad player or are you calling someone a bad coach? So मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक इंटरव्यू में बताया गया है, आप अच्छे मैं कोच से कोई देखा, नाम क्रिकेट नहीं नहीं खेल ले रहा पाए, हूँ, ठीक है, मैं आप कोई अच्छे नाम क्रिकेटर से देखा, आप अच्छे कोच नहीं बन पाए। बढ़िया आई मीन, देखो, I'm sure that Australia should be able to, sort of run through Afghanistan. But Afghanistan, if they win and if they are able to, sort of cause an upset somehow or the other, because it's possible. It's possible in T20. Anything can happen in cricket. I think I'll be really happy. But मैक्सवेल एक पैर बांध के आएगा looks a little खेलने, unlikely. मैक्सवेल एक पैर बांध के आएगा खेलने, देख तू। वो दो टांग चल रहा होगा तो भी एक टांग पे आएगा, याद है बेटा? कौन याद दिलाने? करके। पर इस बार हमने एक नूर टांग पे अहमद हरा भाई को दूंगा, टेंशन इंजर्ड नहीं, कर दिया है, तो कैच पकड़ लेंगे सब। तुमको मैं एक टांग पे हरा दूंगा। But that's it, guys, for today. Of course, we'll see you tomorrow after the two big games that we have in group number A. That is India and Bangladesh, and Australia versus Afghanistan. We'll see what happens. Hopefully, we've had that is India, is at the right side of the result, and of course, that's how they go on to face Australia unbeaten. And I'm sure that Australia is also going to come unbeaten to that game. We'll see what happens tomorrow. Till then, of course, keep spreading the love. And of course, we've completed 30K followers on Instagram. So thank you so much for that. And yeah, we are on X, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on Instagram. So please keep us showing the love that you always have. And thank you so much, guys.